Hi everyone, this is Janish Kothai here and welcome to our video of accounts. So students, in this video, this is supposed to be one of the last sum of the entire playlist because of the fact that there were major 13 sums in this entire textbook which I am referring right now, and those are full-fledged sums. So today in this particular video, I'm going to solve sum number 13 and sum number 13 which is on page number 423, students. Yes, right. And we're dealing with the textbook of 11th standard CBSE, and the name of the chapter is financial statement, and which is chapter number 10. Okay. So students, let's start with the sum, and I am assuming that you guys have already subscribed to our channel, and please like our video this time and drop some comment, share it with your friends, and we're conducting some tuition, students, online and offline tuition for CBSE accounts. So if you're looking for any such tuitions online, no matter wherever you stay, we have got students from different countries also. So if you belong to some other country also, we are still taking tuitions of all those students online, and we're doing it amazing, students. We have some amazing results and we are really working very hard for them. So if you're looking out for any such thing, please let us know. You can contact us. The number is given in the description. And students, in the description, I've also dropped a link, the exact question to look at the question as well as the answer. Okay. Sure. So let's start with the sum, students. We are on page number 423 and sum number 13. Okay, students. So prepare the trading and profit loss account and balance sheet of Messrs Control Device India on 31st March 2017 from the following balances on due date. So students, they have given us trial balance and adjustments. What do we need to do? We need to make trading account, profit loss account, and balance sheet. Okay. So let's start with the first one, drawings. So students, drawings basically is you have to less from capital. Drawings will be deducted from the capital because capital and drawings are exactly opposite to each other, and capital will go on the liability side. Purchase and sales will go on the trading side. Salary and commission both will go to the profit and loss side. Okay. So कोई problem नहीं है, दोनों को साथ में एक बार लिख सकते हैं. Carriage is trading account. Now plant and machinery is fixed asset. Machinery and furniture is also fixed asset. Opening stock is trading account. Insurance premium, profit and loss. Interest, profit and loss. Bank overdraft is a current liability. It's a current liability. Rents and taxes, profit and loss. Wages, trading account. Returns. Since now returns, I'm going to write over here. Debit में जो होता है वो sales return होता है, and credit में जो होता है वो purchase return होता है. तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स, देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा. देखा जाए तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो अमाउंट है 1140, वो इस अमाउंट से डिडक्ट होगा, वो ये वाले अमाउंट से डिडक्ट होगा, और ये वाला जो अमाउंट है वो ये वाले अमाउंट से डिडक्ट होगा, मतलब ऑपोजिट साइड जाएगा. ठीक है, आपको ये याद रखना है. सो जो सेल्स रिटर्न होता है वो लेस फ्रॉम सेल्स होगा, और जो परचेज रिटर्न होगा वो लेस फ्रॉम परचेज हो जाएगा. और यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ. ओके, मैं टिक क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? बिकॉज वहाँ पे एडजस्टमेंट है, आपको ये याद रखना है. कैरेज आउट तो यहाँ पे लिख लो, सब ट्रेडिंग में ही जाने वाला है. ठीक है. कैरेज आउटवर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो जो क्रेडिटर वाला पार्ट है वो करंट लाइबिलिटी है, और जो डेटर्स वाला पार्ट है वो करंट एसेट में जाएगा. जनरल एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस. ऑक्ट्रॉय स्टूडेंट्स, ऑक्ट्रॉय इज बेसिकली अ टैक्स, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. स्टूडेंट्स ऑक्ट्रॉय वगैरह अभी तो लागू नहीं होता है जब से जीएसटी आ चुका है. एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट इज एसेट. चलो, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, याद रखना. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ऐड टू कैपिटल करेंगे. ऐड टू कैपिटल करेंगे स्टूडेंट्स. और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल डेबिट साइड, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम कैपिटल हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लेस फ्रॉम कैपिटल. और ये हमारे लिए इनकम है, फॉर्म के लिए इनकम है स्टूडेंट्स, तो इसको पीएनएल क्रेडिट में डालेंगे. ठीक है, तो एक जाएगा पीएनएल डेबिट में और एक जाएगा पीएनएल क्रेडिट में. नेक्स्ट आफ्टर दैट वेजेस आउटस्टैंडिंग. तो स्टूडेंट्स, अब मैं टिक कर रहा हूँ, वेजेस है, सी में वेजेस है, वेजेस में एडजस्टमेंट है. फिर सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है, सैलरी में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है. और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स प्लांट एंड मशीनरी पे, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी को भी टिक कर रहा हूँ. ओके, प्लांट एंड मशीनरी ओवर हियर. और एक प्रोविजन ऑन डेटर्स दिया हुआ है, तो मैं डेटर्स करंट डेटर्स को भी मैं क्या कर रहा हूँ? टिक कर रहा हूँ. तो जिस जिसमें एडजस्टमेंट थी मैंने एक साथ में सबको टिक कर लिया है. लेट्स डिस्कस नाउ वेजेस इज आउटस्टैंडिंग. वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सी और डी दोनों का सेम आएगा स्टूडेंट्स, दोनों ही ऐड करेंगे. एंड ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स को लाइबिलिटी में डालेंगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, उतना अमाउंट पेंडिंग है, एंड देन इट विल गो ऑन द लाइबिलिटी साइड बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी.
नेक्स्ट आफ्टर दैट ऑप्शन डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, माइनस होगा, लेस फ्रॉम असेट होगा, एंड सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में जाएगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। और सेम स्टूडेंट्स, सेम अगर हम देखेंगे जो अब लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला है स्टूडेंट्स हमारे सामने, ओके लास्ट में हमारे सामने क्या दिया स्टूडेंट्स, 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स है, उसमें भी स्टूडेंट सेम यही होगा। क्या करेंगे, असेट की हम किस में से लेस करेंगे, डेटर्स, डेटर्स भी एक तरह का असेट ही है, उसमें से भी लेस ही होने वाला है, ठीक है। और पीएनएल डेबिट में जाएगा बिकॉज अगेन इट इज एन एक्सपेंस, अगेन इट इज एन एक्सपेंस। तो चलो यू कैन सी द एंटायर एडजस्टमेंट इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, हम आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, ओके चलो। तो स्टूडेंट्स सम शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग के लिए फॉर्मेट बनाया हुआ है एकदम, और ये वीडियो को थोड़ा साइड में डाल देंगे और सम की शुरुआत डायरेक्टली करेंगे फटाफट। सो वी आर ऑन पेज नंबर 13, सॉरी सम नंबर 13 पेज नंबर 423। सबसे पहले ड्राइंग्स और कैपिटल दिया, तो मैं सबसे पहले कैपिटल वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल में से ही तो ड्राइंग माइनस होने वाला है, 67,500। और फिर ड्राइंग्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेस कर देंगे ड्राइंग्स, और अमाउंट है 19,530। ओ माय गॉड दैट्स अ डिफिकल्ट अमाउंट, 19,530। चलो माइनस करना होगा, मैं एक एक डिजिट माइनस कर रहा हूँ पीछे से, पहले 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, फिर 4 तो ये 9 बचेगा, फिर 6, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, और फिर 5 में से 7 गया तो 4। सो 47,000 है, 47,970 कुछ आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। चलो तो इतना कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। परचेज और सेल्स अमाउंट है 45,000, परचेज का अमाउंट है 45,000, 45 तो मुझे रोहित शर्मा की याद दिला देता है। और सेल्स का अमाउंट है 1,12,500, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दैट सैलरी में एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। सो अब जो अमाउंट डेबिट में दिया है, दोनों ही सैलरी एंड कमीशन बोथ गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी इज गिवन टू अस ऑन डेबिट साइड 25,470 एंड कमीशन क्रेडिट साइड दिया है, ओके, with no adjustment over here, तो 1575, putting it as it is 1575। नेक्स्ट कैरेज वर्ड है स्टूडेंट्स, चलो कैरेज यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग में, टू कैरेज, और कैरेज का अमाउंट है 2,700, 2,700, ओके। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 27,000, असेट से आएगा स्टूडेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 27,000, 27,000, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दैट फर्नीचर है 6,750, फर्नीचर 6,750, ओपनिंग स्टॉक 42,300, 42,300, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,700, इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अमाउंट इज 2,700। there is no adjustment for insurance premium, okay। interest दिया हुआ स्टूडेंट्स, oh my god, interest is given on the credit side, students again interest is given on the credit side, तो मैं credit side amount लिखूंगा बिकॉज वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, डेबिट में जाए तो डेबिट साइड, क्रेडिट में जाए तो क्रेडिट साइड, 7,425, परफेक्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आफ्टर दैट, चलो इट्स अ करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। सोचिए बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं ऊपर से थोड़े बहुत लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ बिकॉज कैपिटल में काफी सारे एडजस्टमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट 24,660, 24,660, रेंट एंड टैक्सेस 2,160, चलो टू रेंट एंड टैक्सेस 2,160, 2,160, वेजेस दिया हुआ है 11,215, चलो 11,215 वेजेस, जिसमें एडजस्टमेंट भी है, ओके। अब स्टूडेंट्स रिटर्न्स पे आते हैं, रिटर्न्स तो सबसे पहले डेबिट में दिया है 2,385, 2,385, 2,385, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न हो गया। मुझे कैलकुलेट करना होगा, लुक आई हैव अ बुक ओवर हियर, काफी डिफिकल्ट अमाउंट दिया उन्होंने, 1,12,500 माइनस 2,385, 2,385, 1 4 में से 3 गया तो 1, तो 1,10,115, 1,10,115, 1,10,115, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, अब
1440 डेबिट में दिया है, दैट मीन्स वो हमारे लिए परचेस रिटर्न हो जाएगा 1440। चलो तो 45,000 में से 140 तो 43,000 हो जाएगा, और 440 तो 560 आएगा, 560 ओके। 0 10 से हो गया तो 6, 9 से हो गया तो 5, एंड 4 में से 1 गया तो 3, 43,560। परफेक्ट, चलो हमने कंप्लीट कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 1485, टू कैरेज आउटवर्ड्स 1485। Okay, next debtors 36,000, adjustment students. So debtors 36,000, और फिर यहाँ पर आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 58,500। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस है, ओके, टू जनरल एक्सपेंस 6975। फिर है ऑक्ट्रो है 530। चलो टू ऑक्ट्रो है 530। इन्वेस्टमेंट 41,400, ओके। इन्वेस्टमेंट में हमेशा स्टूडेंट्स आपको बताया मैंने, करंट एसेट और फिक्स एसेट के बीच में लिखता हूं मैं 41,400। ओके, तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस प्रॉपर्ली। मूविंग फॉर द एडजस्टमेंट, स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट है, 10% है। चलो तो कैपिटल का 10% कितना होगा, 6750। तो स्टूडेंट्स ऐड करेंगे 6750, ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड करके लिखने वाला हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास 67,500 था, अभी 47,970 है, 47,970, 47,970, 6750 ऐड कर रहा हूँ मैं। 0 2 1 कैरी, 17 1 कैरी, 14 1 कैरी, 54,720, 54,720, 54,720। और सुन हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये तो बुरी बात है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे लिए एक तरह का लॉस एक्सपेंस है। चलो एक्सपेंस है 6750, ओके। अब नेक्स्ट सेकंड है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने पहले ही बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, और परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बराबर। ओके चलो, और कितना अमाउंट है, ड्राइंग्स अमाउंट है 19,530। ओ माय गॉड, 19,530 को मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, एक जीरो पहले कम कर देता हूँ, तो मेरा 10% हो गया, और उसको डिवाइड बाई 2 करूंगा, 9,765, 9,765, 9 फिर 7, फिर 6, 9,765, इसको 2 से डिवाइड करना, 9 फिर 7 और फिर 6.5, तो 977 कर रहा हूँ, 977, 977। लेकिन अब ये 977 स्टूडेंट्स क्या होने वाला है हमारा, माइनस होने वाला है यहाँ पर 977। चलो बराबर ना स्टूडेंट्स। अगर 10% होता तो 1953 होता, पर 1953 का आधा 977 हो गया है। तो 54,000 कहा, हम 54,720 पे थे, उसमें से 977 माइनस करना है, 977 को माइनस करेंगे। 10 में से 7 गया तो 3 ना, फिर 1, 11 में से 7 गया तो 4, 6, 16 में से 9 गया तो 7, 53,743, 53,743। ओके, सेकेंड इफेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स, इट्स एन इनकम। अब इससे हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो अच्छी बात है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म के लिए इनकम है, अमाउंट है 977। चलो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे अब हम। थर्ड है वेजेस आउटस्टैंडिंग। चलो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड आउटस्टैंडिंग, और कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का, 50 रुपीज है। चलो 50 रुपीज है, ऐड करेंगे, तो 11,265 हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, 5 6 हो जाएगा ये। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके नीचे वेजेस वर्ड लिख रहा हूँ, वेजेस जिसका अमाउंट है 50 रुपीज, यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 रुपीज। अब एक और है आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो चलो सैलरी के नीचे भी आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखेंगे, और अमाउंट दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज, बस 20 रुपीज दिया है, कोई बात नहीं। 25,490 हो जाएगा, 470 का 490 हो गया। और यहाँ पर मैं सैलरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, सैलरी, और यहाँ पर वर्ड आएगा 20, तो 50 और 20 विल कम टू हाउ मच, 70 रुपीज स्टूडेंट्स। ओके चलो कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर सी एंड डी ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड टू नाउ ई पार्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ 5% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 5%। चलो तो लेस
डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% पर एनम, और 2700 10% होगा, उसका आधा 1350 लेस करना है। 27,000 से 1350 गया तो 25,350 है ना, तो 650 आएगा। 27 में से पहले दो का तो 25 और 650। ओके 1350 असेट फिर से कम हुआ है टू डेप्रिसिएशन। असेट कम होना तो बुरी बात है। टू डेप्रिसिएशन ऑन, तो यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी कितना डेप्रिसिएशन है 1350 बराबर। चलो परफेक्ट। सो लेस फ्रॉम असेट और पीएनएल डेबिट साइड डाल दिया। एंड लास्ट एडजस्टमेंट मेक अ 5% ऑन डेटर्स। तो लेस प्रोविजन मतलब आरडीडी हो गया एट द रेट 5% लिख रहा हूँ। 36,000 का 5% कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1800 रुपए आएगा। पहले तो 3,600 उसका 10%, एक जीरो कम कर देने का, तो उसका आधा 1800, तो विल कम टू ऑलमोस्ट 34,200। परफेक्ट स्टूडेंट्स, फिर से इसको फिर से लेस फ्रॉम एसेट हुआ है, तो इसको वहीं पे लिखेंगे टू आरडीडी। कितना अमाउंट आएगा 1,800। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टैली पार्ट। हम उसको क्या करने वाले हैं, अब टैली करने वाले हैं। चलो ठीक है। सो मेरे पास पेन पेंसिल वगैरह है, मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूँ। क्लोजिंग स्टॉक तो कहीं, ओह माय गॉड आई डिड नॉट सी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड फिर यहाँ पर भी आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक मैं वही सोचू, क्लोजिंग स्टॉक तो कहीं दिखाई नहीं मुझे। क्लोजिंग स्टॉक तो हर बार होता है, फिक्स ही है। ओके चलो 20,000 डाल दिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 1,10,000 है तो 1,30,000 हो जाएगा 115। 1,30,000 115, यहाँ पे भी आएगा 1,30,000 115। चलो अभी डेबिट साइड मुझे टोटल करना होगा सबसे पहले, तो एकदम पूरा का पूरा। ओके 42 और 43 कितना होगा 80, रुक जाओ, 40 तो 8 होता है, और 85,000। चलो ये है 85,000, और ये 300 और 500 860। तो पहले जो दो अमाउंट है स्टूडेंट्स, उसका 85,860 आ रहा है। फिर 2,700 है, 2,700, 11,265, 11,200 बहुत ही बेकार नंबर है सारे के सारे। 530 आपको बहुत अच्छे से करना होगा। 5 12 12 प्लस 3 15 1 कैरी, 16 16 प्लस 2 17 18 23 2 कैरी, 5 9 10 1 कैरी। तो कितना 1,03,000, 1,00,355 है। चलो 1,30,115, इसमें से माइनस करूंगा 1,00,000 एंड डायरेक्टली 355, तो जीरो हो गया। अब 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 6 बचेगा। परफेक्ट, जीरो। 10 में से 3 गया तो 7 9 2, तो स्टूडेंट्स 29,760 आ रहा है। 29,760। ओके 29,760। सो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ भी लिख लूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। और अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अमाउंट है हमारा 29,760। परफेक्ट। चलो अभी प्लस करेंगे। 29,760 तो है ही हमारा। 1575 1575 7425 7425 और 977 977। ये क्रेडिट साइड को प्लस कर रहा हूँ मैं पूरा का पूरा। तो पहले 17 आ गया, 1 कैरी, 14 21 23 2 कैरी, 9 और 5 14 14 और 4 18 18 और 9 27 2 कैरी, 10 17 19 1 कैरी। सो 39,737 39,737। चलो यहाँ पे लिख रहा वाला अब मैं 39,737। सेम अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे 39,737। चलो अब मैं डेबिट साइड प्लस करने वाला स्टूडेंट सारा का सारा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ओ माय गॉड मुझे डेबिट साइड ज्यादा हैवी लग रहा है, लगा ही नहीं था मुझे। चलो 25,490। अब मैं यहाँ पे साथ साथ में रनिंग ट्राई करूंगा दो, ये कितना है 4,860, ये दोनों हो गया 4,860 4,860। फिर ये सब इंडिविजुअल 1,485 1,485, डिफिकल्ट डिफिकल्ट अमाउंट है। 6,975 6,975 और 6,750 6,750। ये दोनों कितना है 1,800 1,350, 3,150। चलो 3,150, कुछ तो साथ में हुआ। चलो ठीक है। 0 1 कैरी, 10 16 16 और 8 कितना होगा 24 24 और 7
31 31 41 4 कैरी, 8 और 8 16, 16 और 4 20 20 29 29 और 7 29 और 7 कितना होगा 36 37 3 कैरी, 8 8 और 4 12 13 13 19 25 28 2 कैरी, 48,710। तो स्टूडेंट्स मेरा डेबिट साइड ज्यादा हैवी आ रहा है, जस्ट लेट मी राइट 48,710 48,710। ओके, और यहाँ भी लिखूंगा 48,710। अब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 48,710 में से हमारा 48,710 में से हमारा क्रेडिट साइड रोल कितना आया था 39,737 आया था, ठीक है। ओके, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा 0, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 9 बचेगा, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स 8973 आ रहा है 8973। ये हमारा 8973 स्टूडेंट्स क्या मिला हमें बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चे लोग, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे नेट लॉस, तो यहाँ पे लेस कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली तो ऐड होता है प्रॉफिट होता तो यहाँ पे अब नेट लॉस है स्टूडेंट्स, नेट लॉस। ओके, और नेट लॉस कितना है स्टूडेंट्स 8973। लेट मी जस्ट राइट अगेन 8973। तो अभी क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना है 53,743 तक पहुंच गए थे 53,743 53,743 माइनस 8973 तो 0, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 12 में से 3 8 जाएगा तो 4, 44,770 44,770। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल आ गया 44,770। अब क्या करेंगे प्लस करेंगे 44,770 अब ये कितना अमाउंट है 24,660 24,660। ये कितना है 58,570 0 14 20 2 कैरी, 7 और 2 9 15 20 2 कैरी, ओ माय गॉड 10 18 1 कैरी, 5 9 10 12 1,28,000 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, इतने वियर्ड अमाउंट है, लास्ट में कुछ एक नॉर्मल अमाउंट आ गया, मुझे इतना सरप्राइज फील हो रहा है। ओके 1,28,000। अब असेट साइड भी करेंगे स्टूडेंट्स 25,650 25,650 6750 6750। ये कितना है 41, इसको मैं साथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले 3 डिजिट का 600 रुपया है, और 41 और 34 कितना होगा 575 75,600 51 61 71 75 600 और 20,000 है 20,000 है तो ये तो 95 कर रहा हूँ। चलो 0 0 1 कैरी अगेन 7 and 14 20 2 कैरी 11 12 13 10 18 1 कैरी। स्टूडेंट्स एग्जैक्ट 1,28,000 आ रहा है, अमेजिंग, आई एम सो ग्लैड स्टूडेंट्स। ये वाला सम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ऑल अदर समस, इसके कैलकुलेशंस भी काफी डिफिकल्ट है, बट स्टूडेंट्स हमने ये सम अच्छे से कंप्लीट कर दिया, आई एम सो हैप्पी। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझा हो मैंने या फोटो में नहीं दिखा हो स्टूडेंट्स, सो मैंने फोटो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाला हुआ है, यू कैन गो देयर एंड गेट द फोटो कंप्लीटली प्रॉपर्ली नाइसली। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स टू कमिंग ऑल द वे टिल हियर विद अस। मैंने सारे के सारे सम्स कंप्लीट कर दिए, इसके बाद जो 14 15 16 वो एकदम छोटे छोटे सम्स आई एम नॉट सॉल्विंग देम, बट अज्यूमिंग आप लोग उतना खुद से कर लोगे। Students, if there is anything else that you want me to record and upload for you guys, you can let me know obviously in the comment section, and contact us for online and offline tuitions, थोड़ा हम भी पैसे वैसे कमा लेंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। Thank you so much students, it was nice having all of you, bye bye, take care, see you very very soon।